थिंक इस मैच में आप देखें तो राहुल बॉलिंग करने के लिए आए हैं 95 फ्रॉम 60 डिलीवरीज। एक और सिंगल। चलिए अब चलते हैं पिच साइड पॉपी के पास। Well, I have the captain of Telugu Warriors, Akhil, with me. Akhil, you have to chase 188. Are you feeling the pressure? It's going to be very easy. See, we were going at a very smooth rate, but the Karnataka Bulldozers are bringing the run rate up a little, and that puts pressure back on us. But we have wickets in hand. There's just 1 wicket fallen, and we have 9 wickets in hand. So we're at the moment comfortable. I think we just have to play good cricket, and we'll be through. Well, you guys are already in semis, so what are your views on that? It makes this match a lot more fun for us because we play freely. We don't play, with the pressure of being knocked out if we lose. But every game is exciting, and this match makes it even more exciting because we're playing freely and we're playing, for the audience, for the crowd, to give them a good game. Well, tell me, it's such a fantastic scenario here right now, Telugu and Karnataka. Do you think a movie should be made on this because there's so many fans? No, CCL is a very interesting concept because we're mixing two big obsessions of Indian people. We're mixing movies and cricket. So I think definitely they should take it to a larger. And as the league grows more, we feel more happy because this is very close to all of our hearts. Everyone takes a lot of time out of their schedule and really puts in 100% for this. Well, I'm gonna just put you in a spot. Who are your key players here? Who are my key players? I swear to God, this season has been the most balanced side, but I'd say Prince and Sachin, as our batting has been so brilliant in the beginning. Our starts have been going so well. But yeah, I'd say Prince and Sachin as an opening pair are our key players at the moment. We've been getting great starts. Well, would you like to say something to your fans? No, I'd like to say something to everyone. Thank you for supporting us, and we need all your support because we're putting in a lot of effort into this, and we will try and win the cup for all our Telugu fans. And yeah, thank you for all your support. Well, all the very best. Thank you very much. And back to Upstairs. Thanks so much, Poppy. और सिंगल 98 रन 1 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर के बाद। After 11 overs, Telugu Warriors 98 for 1. बहुत ही सुंदर शॉट, फुल टॉस गेंद और ये छक्का, और इसी के साथ शतक पूरे होते हुए तेलुगु वॉरियर्स का ऑन अ प्लेटर राहुल का गेंद, और आराम से शॉट मारते हुए इसी के साथ 11 ओवर के बाद 100 से ऊपर। और रन ऑलमोस्ट हर गेंद रन लेते हुए, और ये एक और रन से 2 रन और एक और रन लेते हुए, और इसी के जहां पर शायद 1 रन भी रोक सकते थे वहां पर 3 रन खो बैठे। देखिए एक डिफेंसिव शॉट पर हिटिंग ऑफ द स्टंप्स, यू कैन फील फॉर दैट, क्योंकि स्टंप्स पर डायरेक्ट निशाना लग करके एक ओवर थ्रो ऑलवेज फील्स अ बिट बैड, बट उसके बाद एक और रन वो बैठे। ज्यादा हैरान
और परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी भी लगभग 9.5 का रन रेट चाहिए तेलुगु वॉरियर्स को। हालांकि एक विकेट गिरा है पर ये गेम को बदलते टाइम नहीं लगता। जैसे जैसे सूरज नीचे आता रहा है ट्वाइलाइट में, वैसे भी थोड़ी बल्लेबाजी करने में दिक्कत होती है, खासकर से जब नया खिलाड़ी आ जाए तो उसे सेट होते 2-4 बॉलें लगती हैं और आपको अगर एक था 2 विकेट मिल जाए तो सडनली ये मैच बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल उल्टा हो गया। बहुत ही सुंदर शॉट और एक और छक्का। फैंटास्टिक शॉट, इस बारी ऑन द ऑफ। डेफिनेटली परेशान नजर आते हुए सुदीप, जो कर्नाटका बुलडोजर्स के कप्तान हैं। सुधीर बाबू आराम से बाहर आए और सुंदर शॉट। डिलीवरी मारने की कोशिश। 8 गेम लगातार जीत चुके हैं कर्नाटका बुलडोजर्स, लेकिन क्या इस बार एक और मैच जीत पाएंगे कि नहीं, क्योंकि तेलुगु वॉरियर्स लुकिंग सो गुड बल्लेबाजी करते हुए तेलुगु वॉरियर्स। और एक और फुल टॉस और एक और छक्का। ओवर द वेस्ट, बट अंपायर ने कोई इशारा नहीं दिया। 12 ओवर के बाद 120 रन, 1 विकेट के नुकसान में। वेलकम बैक, ब्यूटीफुल सीन्स। खासकर आप तेलुगु वॉरियर्स के सपोर्टर्स हैं तो और भी खूबसूरत लगेगा, क्योंकि तेलुगु वॉरियर साइड सेलिंग सो वेरी स्मूथली। पिछले ओवर में 22 रन कंसीड कर बैठे, और अगर आप देखें अतुल तो लास्ट ओवर में 2 फुल टॉसेस, जिसमें से 2 सिक्सेस, 1 मिसफील्ड जहां पे रन होना ही नहीं था वहां पे 3 रन दे बैठे। सो सडनली एवरीथिंग गोइंग ऑलराइट फॉर कर्नाटका। बॉलिंग चेंजेस भी थोड़े हैरान परेशान करने वाले हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा घबरा जाते हैं एक ओवर में ही। सुदीप अगर विकेट ना मिले, आदत नहीं है मुझे लगता है प्रेशर झेलने की। 8 मैचेस लगातार जीत चुके हैं, ये विनिंग स्ट्रीक जो है आज क्या टूटेगी? डायरेक्ट हिट है और ऊपर से पूछा जाएगा थर्ड अंपायर से, पर मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है पहुंच गए थे। बैट्समैन काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हुए, आई थिंक मेरे हिसाब से इजीली ग्राउंड भी किया था बैट्समैन ने। ये देखिए आराम से ग्राउंड करते हुए। देखिए ये दिस इज परफेक्ट। ये बेसिक्स कितने बढ़िया हैं। अगर आप बैट को ग्राउंड कर देते हैं और घसीटते हुए अंदर आते हैं तो डायरेक्ट हिट से भी आप बच जाते हैं। कई बार अगर आप कैजुअल हो जाए और दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं है, तो तेलुगु वॉरियर्स के जो सपोर्टर्स हैं बहुत खुश हैं और पॉजिटिव इस समय। एक ही ओवर में 9.5 से 8.4 का रिक्वायर्ड रन रेट आ गया, वो बड़े ओवर से पिछली बार में। आई लाइक दैट एक्सप्रेशन ऑन दिलीप वेंगसरकर's फेस एक्चुअली, जब उन्हें देखा हमने। टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशंस, एंड 2 और रन आराम से लेते हुए।
दिलीप वेंगसरकर's expression was interesting क्योंकि बाकी सब लोग उनके साथ जो थे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे थे. He just barely smile now क्योंकि उनको पता है कि अभी भी रन स्कोर करना बाकी है. He knows what it is. दिलीप वेंगसरकर उस जमाने के खिलाड़ी हैं जिस समय 4 रन प्रति ओवर की औसत भी बहुत ज्यादा लगती थी और 225-30 का स्कोर विनिंग स्कोर होता था 50 ओवर के मैच में और 50 रन प्रिंस ने पूरे किए. शानदार पारी, बैक टू बैक 50s. पिछला मैच भी शानदार तरीके से 10 विकेट से जीती थी तेलुगु वॉरियर्स रांची में और देखिए खुशी का ठिकाना नहीं और बढ़िया 33 गेंदों में स्टेडी पारी और बहुत बढ़िया टेक्निक उन्होंने अपनी दिखाई है. एक भी मुझे लगता है फॉल्स शॉट मेरे जहन में नहीं है जो उन्होंने खेला है. तो एक छोर पकड़ के अगर करते रहेंगे बल्लेबाजी और अंत तक रह गए तो ये मैच तेलुगु वॉरियर्स जीत जाएगी. आराम से खेलते हुए विद इन द सर्कल एक और रन. आप देखें तो लगभग हर गेंद पर एवरी बॉल इज दे स्टार्टेड स्कोरिंग. इसका मतलब यह है कि वो ऑड 4 और 6 के अलावा देयर इज नो प्रेशर ऑन एनी फ्रंट बैट्समैन के लिए. और ये ड्रॉप. It's another big miss. So Abhimanyu, have you dropped the match? That is the question now. फिर भी सीधे बल्ले से ड्राइव मारने की कोशिश, पूरी तरह से बैक नहीं किया आपने आपको. वैसे ओवर द टॉप लगाते हैं पर अलोंग द ग्राउंड खेलना चाहते थे और जैसे मैंने कहा विकेट 2 पेस था, थोड़ा ज्यादा तेज चला गया एक्सपेक्टेड स्पीड से अभिमन्यु का, पकड़ नहीं पाए, निराश हो गए. बहुत बड़ा विकेट मिल जाता अगर प्रिंस यहाँ आउट हो जाते. और फिर से वही जो एक स्टेपल शॉट है उनका, उससे पीछे नहीं हटेंगे. 1 रन आसानी से 127 पे और 2 रन ले लिए. 128 पे 1. After 13 overs, Telugu Warriors 128 for 1. वेलकम बैक. 42 गेंद बचे हुए हैं और 60 रन की जरूरत. जिस हिसाब से प्रिंस ने अपनी पारी को पेस किया है 52 ऑफ 35, बढ़िया सपोर्ट देते हुए सुधीर बाबू. एक और रन, अगेन सेंसिबल. उनको पता है कि प्रिंस इज द मैन इन फॉर्म. देखिए बहुत मुश्किल है किसी भी गेंदबाज के लिए कि 6 की 6 गेंदें एकदम टप्पे पे खिलाना. यहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है तो एक आधी लूज गेंद के इंतजार में है. प्रिंस तो जानते हैं कि वो आएगी और अगर मैं खड़ा रहा तो मौके आएंगे. ओह देखिए कितनी आसानी से, अब नहीं रुकेगी ये बॉल, क्योंकि डाइव मारनी पड़ती है और इस मैदान में बहुत मुश्किल है डाइव करना. अगर आपने बॉल को जाना दिया आपने आगे से तो फिर उसका पीछा नहीं कर पाएंगे. आराम से फील्ड को पिक करते हुए प्रिंस. कई बार ऐसा होता है कि बैट्समैन अपने मिनी माइलस्टोन के बाद ही ट्राइज टू बी अ लॉट मोर फ्लैशियर 50 या शतक मारने के बाद, लेकिन प्रिंस आराम से खेलते हुए एक और बार, ये देखिए एक और बार वेट किया गेंद के लिए. probably wanted to hit it a bit too hard. जब आपको सेंसिबल खेलते हुए बाउंड्री मिल जाए तो फिर जरूरत नहीं है रिस्क लेने की. थोड़े से चेहरों पे स्माइल जरूर आई थी. ओह भारी किनारा. तो जिस दिन अब दिन हो आपका तो जो आप मर्जी करें. और गेंदबाज भी सिवाय मुस्कुराने के कुछ खास कर नहीं पा रहा. महेश ने अच्छी गेंद की है और ये 2 बाउंड्रीज जो है ये बड़ी भारी पड़ेगी.
और क्योंकि फील्ड स्प्रेड आउट है, ही कैन अफोर्ड टू टेक दोस चांसेस, क्योंकि उनको पता है कि स्लिप नहीं है और आराम से बल्ला घुमा सकते हैं। एक और बार रन से खेलते हुए एक और रन। ऑलरेडी 10 रन मिल चुके हैं इस ओवर में। 50 रन की जरूरत, 6 ओवर बचे हैं अभी। They look well on track, Telugu Warriors. चौवन रन की साझेदारी 6 ओवर में। एक रन लेने की कोशिश। 138 for 1 after 14. In the 14 overs, Telugu Warriors 138 for 1. वेलकम बैक। ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक के बारे में हम अक्सर बात करते हैं एंड दैट इट अपीयर्स दैट प्रिंस हैज हैड प्लेंटी ऑफ दैट, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने इस इनिंग्स को पेश किया काबिल तारीफ है। ही हैड सो मेनी गुड शॉट्स। सबसे बड़ी बात यह है कि ही हैड टाइम टू प्ले ऑल दोस शॉट्स। बेहतरीन 50, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और रन। बिल्कुल स्टांस ऐसा है प्रिंस का जैसे अजहर की याद दिला दे। अजहरुद्दीन भी इसी तरह से ऐसे ही कंधे झुका के स्टांस में रहते थे। बिल्कुल बल्ला जो है उसका फ्लो बिल्कुल सीधा है, क्रॉस बैटर शॉट नहीं मारा उन्होंने। और आप अगर उनका वैगन व्हील देखें या पिच मैप देख लें तो सीधे सीधे रन बनाए उन्होंने। 8.4 की औसत से अब उनको बचे हुए रन जो चाहिए 48 रन चाहिए 34 गेंदों में और 9 विकेट हाथ पे। तो बड़ा आसान सा एक इक्वेशन नजर आ रहा है एकदम। कोई ड्रास्टिक अगर बदलाव ना हो मैच में तो यहां से 1 ओवर टू स्पेयर जीत जाना चाहिए तेलुगु वॉरियर्स को। और एक और चीज अतुल, ऑल ऑफ अ सडन देयर इज नो डिस्कशन, देयर इज नो चैट, फील्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक कर्नाटका हैव गिवन अप ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि सुदीप आराम से खड़े हैं कीपिंग करते हुए एंड ऑब्वियसली तेलुगु वॉरियर्स स्माइलिंग। उनको पता है कि सिर्फ सिंगल लेते रहे लगातार, दे कैन डू समथिंग अराउंड इट। ब्यूटीफुल शॉट, बहुत ही सुंदर शॉट थ्रू द कवर्स। एक और चौका। पहले 3 गेंदों में 1-1 रन लेने के बाद एक और चौका। सम पावर एक्चुअली, जिस हिसाब से उन्होंने उस गेंद को मारा। गुड टाइमिंग, गुड पावर। Context of this tournament, in the context of Celebrity Cricket League, अगर तेलुगु वॉरियर्स जीत पाएंगे तो काफी it's a huge victory। एक चौके के बाद एक और सिंगल, जिसको 2 में परिवर्तित करते हुए सुधीर बाबू काफी तेजी से भागते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड से has been consistently pushing Prince for 2। They are sensing it Telugu Warriors।
ओवर की समाप्ति 147 for 1. ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज में एक कमेंट्री बॉक्स में डबल चेंज। मैं उदय भान सेन, मेरे साथ देवांग गांधी, और पिछले ओवर की आखिरी गेंद को रेफर किया गया है। यहां पे पैर हवा में लग रहा है, बहुत ही करीबी मामला है, लग रहा है शायद वापस लौटना पड़ेगा यहां पर। अब ये एंगल से देखते हैं, अब तक तो ठीक था लेकिन उसके बाद पैर हवा में। जाने अनजाने में कहा जाना चाहिए, जाने में बहुत गजब की विकेट कीपिंग, क्योंकि आखिरी वक्त तक उन्होंने देखा, पैर जब थोड़ा सा उठा तब उन्होंने बेल्स विप ऑफ किए। तीसरे अंपायर का निर्णय देखना होगा। लाल बटन दिख रहा है दबता हुआ, और हाँ वही हुआ, दूसरा झटका लगा यहां पर तेलुगु वॉरियर्स को। वापसी का एक मौका बना है। बाबू आउट हुए 39 पर, 147 2 विकेट के नुकसान पर।